القادر اور پوتر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر سرفراز ایک مرتبہ پھر سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس سے پہلے کہ میرے عزیزو ہم خدا کے کلام مقدس کی اور دھیان دیں، خدا کے کلام مقدس کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں، آئیے ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ اے جلال کے بادشاہ محیب قادر مطلق، آج اس پر تیری شکر گزاری کرتے کہ خداوند تو چاہتا کہ تیرے لوگ تیرے کلام کو سنیں، اور خداوندوں کے خدا اپنا دھیان تیری اور لگائیں، اور تو اپنے کلام کے وسیلہ سے انہیں کثرت سے برکت پر برکت دے، اور جو لوگ اس ایمان سے بیماری، لاچاری، تنگی میں اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں، خدا آج تیرے کلام کی عظمت کے وسیلہ سے، تیرے کلام کی سچائیوں کے وسیلہ سے، تیرے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے خدا قدوس وہ آج کثرت سے شفا کو رسیو کرے، ہر طرح کے روگ، ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی دکھ تکلیفیں، پریشانیاں یسوع مسیح آج آپ کے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے جاتی رہے، اور تیرے لوگ نام القدوس یسوع کے جلالی القادر نام میں مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ آئے گا میرے عزیزو، ہم کلام مقدس کی طرف دھیان دیتے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو انسان خدا کی باتوں پر توکل کرتا ہے خدا اس سے برکت دیتا ہے۔ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں جیسا نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ 51 چیپٹر اور اس کی 6 ورس کو دیکھیں گے، 51 کی 6 کو دیکھیں گے کہ کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤ اور نیچے زمین پر نگاہ کرو، کیونکہ آسمان دھویں کی مانند غائب ہو جائے گے اور زمین کپڑے کی طرح پرانی ہو جائے گی، اور اس کے باشندے مچھروں کی طرح مر جائیں گے، لیکن میری نجات ابد تک رہے گی اور میری صداقت موقوف نہ ہوگی، آمین۔ میری چیزیں یہاں پر لکھا ہے کہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خداوند خدا کہتا ہے کہ اے بنی نو انسان، تو آسمان کی طرف نگاہ کر اور زمین پر دھیان کر کہ آسمان جلد دھواں کی مانند اڑ جائے گا اور زمین کپڑا کی مانند پرانی ہو جائے گی، لیکن میری صداقت اب تک قائم رہے گی۔ میری چیزوں، کلام مقدس آج ہمیں یہ بات خدا کے کلام مقدس کے اندر ہمیں کس لیے سکھائی جاتی ہے کہ میری چیزوں، خدا کے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی۔ لیکن جب ہم خدا کے آئین کو سنتے ہیں، ہم اپنے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے اور نہ اپنی وہ شاید جو ہمارے پاس ہے یا اپنی عیش و عشرت پر، تو خداوند خدا جو ہے وہ یوں سکھاتا ہے کہ جو صداقت سے سچائی کا کام کرتے ہیں، خداوند خدا کہتا ہے کہ میں ان کی حدوں کو بڑھاؤں گا اور انہیں سرفراز کروں گا اور انہیں نجات بخشوں گا، جو لوگ سچائی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ صداقت کا کام کرتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ میرے عزیزو، ہماری جو زندگی خداوند خدا نے ہمیں دے رکھی ہے اس میں ہمیں دھیان کرنا ہے کہ تمام جو عیش و عشرت ہے وہ اس آسمان کی طرح، جیسے وہ یوں سکھاتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ جائے گا اور زمین کپڑا کی مانند پرانی ہو جائے گی، لیکن میری صداقت اب تک قائم رہے گی۔ ضرورت ہے کہ میرے عزیزو، ہم صداقت کے کاموں کو سر انجام دیں اور سچائی سے خدا کے کلام کو سنیں اور اس کے مطابق چلیں، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر اگر ہم سیکھیں تو استثناء کے اندر یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو تجھے آج کے دن میں حکام دیتا ہوں، اگر تو جان پہچانی سے سنے اور اس پر عمل کرے تو مبارک ہوگا، تیرے بچے مبارک ہوں گے، تیری ہر وہ چیز جس کو تو ہاتھ لگائے گا مبارک ہو جائے گی، گھر سے جاتا بھی مبارک ہوگا، گھر میں آتا بھی مبارک ہوگا۔ میرے چیزوں، پھر کلام مقدس ہمیں اس تمام سچائی کی باتوں سے آگاہ کرتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو آج دنیاوی جن پر ہم فکر کرتے ہیں، یہ دھواں کی مانند اڑ جائیں گی، جیسے آسمان دھواں بن کر اڑ جائے گا اور زمین کپڑا کی مانند پرانی ہو جائے گی، اسی طرح آج بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جو مسیح میں قائم رہتے ہیں۔ خداوند خدا کہتا ہے کہ خدا ان کو بڑھاتا ہے، اور لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میری صداقت اب تک قائم رہے گی۔ کس صورت میں میرے عزیزو؟ جب ہم صداقت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ خدا کے کلام مقدس کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس کے آئین کے مطابق
मुताबिक चलेंगे तब हमारा खुदावंद खुदा जो है वो हमें बढ़ाएगा। लिखा है कि वो लोग जो मेरे आयन को सुनते और उस पर अमल नहीं करते, वो सल्तनतें, वो लोग मच्छर की तरह मर जाएंगे, लेकिन मेरी सदाकत अब तक कायम रहेगी। लेकिन जरूरत है कि हम, जैसे यिर्मयाह के अंदर लिखा है कि जो लोग खुशी के साथ, सच्चाई के साथ सदाकत का काम करते हैं, खुदावंद खुदा उनको बढ़ाता है। तो जरूर है कि मेरे अजीजों, हम सच्चाई के साथ, लगन के साथ सदाकत के काम को सरंजाम दें ताकि खुदावंद हमें बढ़ाए और हमें बरकत पर बरकत दे। लेकिन हम एक और हवाला पर ध्यान देते हैं, जिसा नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा उसका 66 चैप्टर उसकी वर्स 2 में देखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। क्योंकि ये सब चीज़ें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई, खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूँगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। आमीन। मेरी चीजों, यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा खुद यूं फरमा रहा है कि ये तमाम चीजें मेरे हाथ ने बनाई और मैंने इसको तरतीब दी है, लेकिन मैं उस पर निगाह करूंगा जो मेरे कलाम को सुनता डर जाता है और कांप जाता है। खुदा कहता है वो मुबारक बशर है। अगर मेरे चीजों आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको मुबारक बनाए, आपको सरफराजी दे, आपको कामयाबी दे, हमेशा की जिंदगी दे और कसरत से बरकतों से भरे, तो जरूर है कि मेरे चीजों हम हर वक्त खुदा के कलाम को सुनते और डरते और कांपते रहे, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, ज़बूर के अंदर लिखा है कि खुदा का डर और खौफ हिकमत का शुरू है। जब हम डरते और कांपते हैं, उसके फाटकों में हासिल होते हैं, तब खुदा जो आसमानों से देखता है वो हमें सरबुलंद करता है, हमारे तवक्कुल को देखता है और फिर वो हमें बरकत पर बरकत देता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो मेरे आयन को सुनता है और उस पर अमल करता है, खुदा उसे सदाकत की राहों पर ले जाता, उसे कामयाबी की राहों पर ले जाता, उसे सरफराज करता, उसे सर बुलंद करता है। क्योंकि लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, क्योंकि वो मेरे हकाम को सुनता और डरता और कामता, इसलिए मैं उसे सर बुलंद करता हूं। क्योंकि खुदा मेरे चीजों ये चाहता है कि हम हर वक्त डरते और कांपते रहें और उसके कलाम के मुताबिक चलें, तब वो हमें सरबुलंद करेगा। लेकिन हम देखते हैं यिर्मयाह के 17 के 7-8 को देखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। एक और हवाला पर ध्यान देंगे, 17 के 7-8 को देखेंगे। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बास न रहे। आमीन। मेरे चीजों यहाँ पर भी लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल खुदावंद खुदा पर है, और लिखा है कि वो उस दरख्त की मानद है जो झील या नदी के किनारे लगा हो और उसको वक्त पर पानी मिलता, वो भरता और फूलता और उसे खुश्क साली से भी डर नहीं लगता और वो फल पर फल देता चला जाता है। आज भी मेरे चीजों हम फल का पाते हैं, और कैसे पाते हैं? जब हम खुदा पर तवक्कल करते हैं, जब हम उससे डरते और कांपते हैं, जब हम उसके आयन को सुनते हैं और उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं। मेरी चीजों, फिर हमें ना भूख की परेशानी होती है, ना बेरोजगारी की परेशानी होती है, क्योंकि लिखा है कि मुबारक है वो बशर जिसका तवक्कल खुदा पर है। लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर के खुदावंद खुदा उसकी सोचों को जानता है, उसके अंदेशों को जानता और कहता है कि मैं तेरे मांगने से पहले ही जानता हूं कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। जरूर है कि मेरे चीजों हम अपने खुदावंद पर तवक्कल करें और उससे डरते और कांपते रहे और उसके आयन को सुने और उसके हुक्मों पर अमल करें और सदाकत के काम को सच्चाई के साथ, लगन के साथ, खुशी के साथ करें, तो खुदावंद खुदा हमें बढ़ाएगा, खुदा हमें बरकत पर बरकत देगा, सर बुलंद करेगा। क्योंकि लिखा है कि वो बशर फल पाएगा जो उसके ऊपर तवक्कल रखेगा
उसको ना तो आंधियां कमजोर कर सकेगी, ना तूफान, ना और फिर किसी तरह की दुख तकलीफ, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा कि उसका तवक्कल जिंदा खुदावंद खुदा पर है, और जिसका तवक्कल जिंदा खुदावंद खुदा पर है, खुदावंद खुदा उसको सर बुलंद करता और कसरत से बरकत पर बरकत देता है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत उन पर हो जो आज खुदावंद पर तवक्कल करते हैं। आमीन। आएगा मेरे जीजो, मैं चाहता हूं कि बीमारों के लिए दुआ की जाए कि खुदावंद उनको आज बरकत दे, जो ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। खुदा आज अपने कलाम के वसीला से उनको कसरत से बरकत दे। अय अब्दी अस्मानी जलाली मुहिब कादरी मुतलिक, मैं आज मिर्ची गाड़ी इस बात के लिए शुक्र गुजार हूं कि खुदावंदों के खुदा तू चाहता कि तेरे लोग सदाकत पर ध्यान लगाएं, और खुदावंदों के खुदा अपना तवक्कल तेरी ज़ात अक़सा मुबारका पर लगाएं, ताकि खुदावंद खुदा तू उन्हें कायम करे, उन्हें सर बुलंद करे और उन्हें हमेशा की जिंदगी, सरफराजी और खुशहाली अनायत करे। क्योंकि खुदावंदों के खुदा कलाम मुकद्दस के अंदर भी यूं ही आज लिखा हुआ दर्ज मिलता है कि मुबारक है वो शख्स, आदमी जो तुझ पर तवक्कल करता है। खुदा तू उससे उस दरख्त की मानिंद फल दर बनाता है जो झील के किनारे लगाया जाता है। जलाल के बादशाह, जितनों ने आज तेरे कलाम को सुना वो 100 गुना फल लाने का सबब बने। हर तरह की बीमारियां, हर तरह का शुगर, हर तरह की कैंसर, हर तरह की हड्डियों का सारी तरह सीमिया प्रॉब्लम, बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे। और जलाल के बादशाह, हर तरह की खारिज का इन्फेक्शन, सारे जिल्दी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे। और जलाल के बादशाह, किसी के हाथ जॉब नहीं, वो जॉब की नीड रखता, मैं जिसको देख रहा हूं आज उसी घड़ी जॉब को रिसीव करने पाए। और यहोवा पाक खुदा, किसी के हाथ अपना घर नहीं, आज यीशु मसीह यहोवा जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुना, तवक्कल किया, तो उनको अपने घर जैसी बरकत दे। और जलाल के बादशाह, किसी भाई को मैं देख रहा हूं जो गाड़ी की नीड रखता, आज तेरे कलाम के वसीला से उसने तुझ पर तवक्कल किया, उसने गाड़ी जैसी बरकत दे। और यहोवा पाक खुदा, खास तौर पर मैं मिन्नत करता हूं जलाल के बादशाह, हर तरह की खुदावंदों के खुदा हड्डियों की जितनी भी मूसी बीमारियां, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में जाते रहे। सारा टीबी इन्फेक्शन और हर तरह की गंजे का गंदा दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे। और जलाल के बादशाह, तमाम किडनी का प्रॉब्लम, तमाम पित्ते की पत्थरियां, सारे डायलिसिस प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव होते जाए, और तेरे लोग शिफा पाते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें, और उनका तवक्कल हमेशा तेरी ज़ात पर कायम रहे, और सारी सारा जलाल तेरे नाम अल कदूस यीशु को मिले, यीशु के जलाली अज़ली अल कादर नाम में, आमीन। यकीनन मेरे चीजों, आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि बतेरों ने इस पर तवक्कल किया, आज इस खड़ी खुदा ने उनको सर बुलंद करने वाला और उन्हें अपनी बरकतों से भरने वाला। इसी तरह खुदा के खादिम पास्टर सरफराज को इजाजत दीजिए। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत।